Did you practice a little? I've never spoken to a British speaker in person. Shubhankar writes, he has never spoken to a British speaker in person. Amne samne se, samne se. So, like online is a different thing. In person. I haven't done today's homework yet. I haven't done today's homework yet. Hello, sir. Good evening. Hello, Adil. Hey, Atif. Good, sir. How are you doing? Shubhankar. Good evening, sir. Good evening. On the switch. Yes. Good evening, sir. Yes, Sadam bhai, थोड़ा चलो. Good evening, sir. Hello, Swarnanjali. Good evening. Good evening, sir. Hello, Simran. Bit closer. From my side. Good evening, sir. So yeah, I can see some sentences from Shubhankar. I have never spoken to a British speaker in person. I haven't done today's homework yet. Have you ever eaten ramen? I happened to speak to an American in person. This is not present perfect because you write I happen to, subject plus be2. So this is not the present perfect. I visited Sikkim 2 years ago, past simple, with my wife and brother. Last year, I went to Jagannath Temple. Again, past simple. Did you know that Kumbh Mela took place in Uttar Pradesh this year? It always takes place in Uttar Pradesh. Kumbh is for Prayagraj, Allahabad, Sangam, right? Kumbh takes place there now. Not always. Then? It takes place quite 4 places. Oh, Haridwar, Uttar Pradesh, Prayagraj, oh, Nasik, and Ujjain. okay. It repeats after Right. Have you ever read a Sherlock Holmes detective story? So some of your sentences are past simple. Do you know that, Shubhankar? Yes, sir. Okay. Next, Ankush writes, I saw a movie last night. Which tense is this, Ankush? I saw a movie last night. Which tense is this? Past simple? Good. Soren ate an apple in the morning. Past simple. Subject plus be to Soren ate. I wrote a letter to my friend. Past simple. The window of my house is broken. Present. The window is broken. It is the
I wish this table was a bit bigger. If you guys move back a little, you know. Little more without little more in the corner. Backwards. We can have some more people if we move backwards a little bit, right? The circle will become bigger, obviously. Good evening. Hello, Priya. The window of my house is broken. Wow. Present simple. Broke. Let me tell you, present perfect is not possible. Two elements are necessary. What are those two elements? Has or have and V3. These two elements together are called present perfect. It is not a present perfect sentence. Your sentence is broken. I have seen that film. Now this is present perfect. I have seen that film. Do we have another chair, please? And boys, quickly get a chair. Next, Anshika. Anshika, you wrote, or Atul? Anshika wrote. I haven't seen a ghost. I haven't seen a ghost. Have you ever stolen money? Have you ever got a pet? Have you ever cheated on someone? Romantic relationship में cheat on होता है, ठीक है? Normal relationship में cheat someone. And romantic relationship, cheat on someone. I have visited the Ram Mandir in Ayodhya. Experience. Have you ever seen God? Not the God. Have you ever seen God? Iksha, you wrote. The weather has changed a lot this week. I have never seen a ghost. Someone has taken my keys. My brother has just called with some exciting news. Why do I get this feeling that Iksha did not do it the organic way? Iksha did not do this homework the organic way. Organic way is when you pick up a pen and you sit down and start writing what comes to your mind. That's called organic. Sometimes you don't do that for various reasons. You feel less confident and you search for help online. You talk to individuals for help. What did you do, Iksha? I was writing on Google Translate. When Google Translate. Next time, don't do that. As simple as that. Do it at the organic way. Pick up a pen and write your sentences that come to your mind. That will be a real test of what you have understood in the class. If what I taught helped you and you wrote sentences correctly, well done. And if you couldn't, I'll have to teach the same thing one more time so that you can develop an understanding. I'm moving on. I'm not reading because I'm a bit annoyed. Please explain this in the floor number. Iksha sentence, Yeah. I'm not going to read. No, sir, just she used No, not reading. Because this is a strong message to all my students. I taught something in the class yesterday, and I wanted you to practice what you understood. Thanks for being honest. It goes in your favor. I'm happy that you shared, but next time, don't do this. Do it the organic way. Yes, as far as your sentences, you wrote them by yourself or you also took some help? My question is very simple. You did it on your own or with some help? Okay. I have finished my work for the day. She has already eaten dinner. We have lived in the city for 5 years. He has bought a new car recently. They have traveled to many countries in Europe.
I have known my best friend since childhood. I am not very sure Sparshi is being 100% honest. Iksha was honest. Iksha accepted that she was on Google Translator, right? Sparshi is not being straightforward. The means are right. With my relative. Like I said, is this something you wrote by yourself? Organically means things I taught, you sit down with a pen and you start writing. I think this is a good example. This is a good example. Have you done this or there was another thing you did? My Again, I'm not saying these are real life incidents or not. Did you write them by yourself? Absolutely. Then I'm proud of you. Can you tell me why sentence number 6 is the way you have written? Why did it come to your mind this way? I've known my best friend since childhood. because normal Hmm? normal No, I'm sorry. मैंने I know क्यों नहीं लिखा? I know my best friend since childhood. I know my best friend since my which sentence is correct? I know my best friend. I have known my best friend. Why? ये कैसे आया तुम्हारे दिमाग में ये सेंटेंस राइम और रीजन two more yes you have one there or two yes just bigger circle closer to each other okay go back a little go back bigger circle I'm not asking you to go left right go back yes go back and back a little yes Sahi, go back 10 inches a few more inches left to your right yes to your right okay seems fine I just translated the words. which sentence which words मैं अपने दोस्त को अपने बचपन हाँ ठीक है मैं जानता हूँ इंग्लिश I know तो फिर आई हैव नोन कैसे हो गया तो ये कैसे हो गया आई हैव नोन कैसे हो गया आई नो से मैं जानता हूँ इंग्लिश तो आई नो होता है हाँ व्हाट इज द रूल it is present perfect कैसे because this sentence has ये तुमको कैसे पता तुम्हारे पास तो हिंदी है दिमाग में कि मैं तुमको बचपन से जानता हूँ What? Please explain what I taught. वही तो मैं सुनना चाहता हूँ बेटा present ये प्रेजेंट परफेक्ट है कैसे ये कैसे डिसाइड हो गया मैं जानता हूँ इंग्लिश आई नो होता है ना तो फिर मैं आपको बचपन से जानता हूँ मैं आई हैव नोन कैसे हुआ मे बी आपको याद रह गया सेंटेंस अगर आप ऑनेस्ट हैं तो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है दैट्स 100% ऑब्वियस ओके तो फिर से सारे बच्चों याद रखना जब भी मैं इस तरह के टास्क दे दूं तो मैंने कल कुछ कराया ना आपको ढेर सारा देर आधे घंटे 45 मिनट आई गेव यू प्रैक्टिस आई वांटेड टू सी व्हाट यू वर कैरिंग होम दैट्स ऑल Second, I have spent a night in the field of my village. My friend has just left for his home after discussing about Sunday's plan. I have driven a tractor. Really?
So it could have been, I have never driven a tractor. Haven't even. I haven't visited the Taj Mahal yet. I have just finished my homework. We will not play outside when it rains. ये present perfect नहीं है, ठीक है? I'll go for a desert safari after I earn a lot of money. Okay, good. Simran. And all those people who have not done their homework, please be ready with your excuse. At the moment, I'm waiting for my 4th semester result. Girls need to learn cooking when they get married. I can't plan when I'll get married. And I haven't got a boyfriend at the moment. I saw a snake in my college campus. One day one day करके आप नहीं बोलते प्रेजेंट परफेक्ट. जैसे वन डे आप बोलेंगे क्या हो जाएगा वो? एक दिन. पास्ट सिंपल है ना, डेफिनेट हो गया. तो आप क्या करेंगे? पास्ट सिंपल यूज करेंगे. Okay, sir. I don't know. Maybe I'll have to restart my computer because I'm unable to use my Zoom on my computer. So give me a couple of minutes.
Okay, now let's talk. The big difference between the present perfect and past simple is present perfect in no manner conveys when the action took place, directly or indirectly. It is not concerned with the time of the action. Present perfect is not concerned with the time of the action. Directly or indirectly, you cannot convey when the action happened. If you are conveying the time of the action, either directly or indirectly, you must use the past simple. So when Shimran wrote, after my exam or when I was at college, तो फट से time refer हो गया ना? कब? After the exam. When I was at college. हो गया ना time refer? Tense will be used. Past simple. Present perfect only conveys that the action has taken place. That's it. ये हुआ है. कब हुआ है? ना. So let's see. एग्जाम्पल लेते हैं. हम दिल्ली गए हैं. दिल्ली, आपको पता चला कब की बात हुई? Do you have any information about कब? No. So this sentence is present perfect. Present perfect doesn't tell you when. It doesn't tell you when. If you are concerned with when, how, why, where, which tense will you use? Past tense. Past. ऐसा बोलते हैं. If you want to talk about an experience, you will use the present perfect. But if you want to talk about the details of that experience, then you will use the past simple. मैंने बंदूक देखा है. I've seen it. Seen. Right. Gone. अब डिटेल्स आता है. एक दिन बस घर जा रहे थे, दो लोगों ने घेर लिया और बंदूक निकाल लिया मेरे सामने. उसी से मैं पहली बार बंदूक देखी. सारा क्या हो रहा है? ये सारा क्या जाएगा? कौन सा टेंस? Past. Past. I was walking home and two people suddenly came from nowhere and took out a gun and pointed it at me. That was the first time I saw a gun. हालांकि शुरू में मैंने क्या बोला था? I have seen a gun, क्योंकि वहां पर मैं मैसेज क्या देना था मुझे कि ये एक्सपीरियंस मुझे है. I have seen a gun. Present perfect expresses experiences. It expresses experiences. तो भाई बता दिया मैंने गन देखा. I have seen a gun. अब उसके डिटेल में गए. एक बार घर जा रहे थे. I was going home. Two people and the street was kind of deserted. There weren't many people, and suddenly two people came from nowhere, and they pointed a gun at me. That was the first time I saw a gun. अब देखो, अभी मैंने वही लाइन यहीं पर उसी घटना के बारे में बात कर. मैं कौन सा लाइन बोल दिया? That was the first time I saw a gun. क्यों? Because I'm describing a past event. जब मैंने पहली बार बोला था seen a gun, तो मैंने कोई past event नहीं डिस्क्राइब किया. मैंने एक्सपीरियंस बताया कि हम गन देखे हैं. तो अगर आपको एहसास होता है कि एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उनको हिंदी में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो करके दिखाइए. हिंदी में अनुभव एक्सप्रेस करके दिखाइए. हिंदी में ऐसे सेंटेंस बोलिए जो आपके अनुभव बताते हैं. हाँ, लाइफ के अनुभव, लेकिन उसके टाइम के बारे में नहीं बताएंगे. वन एग्जाम्पल फ्रॉम ईच पर्सन. आपने गिटार बजाया है. आपने स्कूटी चलाया है. देखिए, इसमें कहीं से भी टाइम का रेफरेंस है. गो ऑन. कपल ऑफ एग्जाम्पल्स, जस्ट वन. I have played cricket. हिंदी में पहले जाएंगे सारे लोग. मैंने अनुभव क्रिकेट बताने. खेला है. आप खेली हैं? अच्छा. ट्राई किया है. आप? ट्राई किया. ठीक है, बहुत अच्छा. हिंदी में बताइए सारे. हाँ, जल्दी जल्दी. मैंने स्विमिंग किया है. आपने स्विमिंग की है? ओके.
अब बाघा बॉर्डर जा चुके हैं, आपने देखा है उसको, बहुत बढ़िया। अब विदेश का है, झूठ मत बोलिए, बकवास। अनुभव बताइए लाइफ के। हाँ, आप उल्टा बोल दीजिए ना, हम विदेश, ये भी तो अनुभव नहीं गए हैं, हो गया। हाँ, फुटबॉल। कुछ तो करा है, तो बता नहीं रही, बताओ। मोबाइल हम चला कितना चला? कुछ तो किया है तुमने, बता दो क्या किया। कुछ नहीं मैंने किया। रेस किया है। यस समीर, मैंने रेस किया है। आपने बाइक रेसिंग की है? यस सर। वही बोल रहे हो ना, बाइक रेसिंग की है ही ना? यस सर। गुड। अदर पीपल, आयत, कुछ तो किया है। हाँ, आप स्नोफॉल देखी हैं, आप स्नोफॉल एक्सपीरियंस किए हैं, राइट? आपने, और बताएं। मैंने क्रिकेट खेला। हाँ, ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके अनुभव। इसमें कभी भी आप टाइम मेंशन नहीं करते हैं, याद रखने वाला पॉइंट है। आप लोग मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू शेयर प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस इन हिंदी, रिमेंबर इसमें टाइम का रेफरेंस नहीं होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ नहीं, कब हुआ है नहीं पता, बस हुआ है। करेक्ट, ये है अनुभव। हिंदी में समझ में आ गया? इंग्लिश नहीं बुलवाएंगे बिकॉज एवरीबॉडी नोज द फॉर्म हैज है प्लस V3, तो उसको आप कर लेंगे, नो इश्यूज। ध्यान देने वाली बात है, इन दीज सेंटेंसेस वी डू नॉट हैव मेंशन ऑफ टाइम ऑफ द एक्शन, कि कब हुआ ये नहीं बताना। जैसे ही टाइम ऑफ द एक्शन बता दिए, कौन सा टेंस हो गया वो? पास्ट सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अनुभव के अलावे काम खत्म हो गया है वाला भी बात। मम्मी, कल मैंने बोला था, एग्जांपल देता है, टॉयलेट साफ कर दिए हैं, हो गया है जो भी है, फिर उसमें बताए कब किए, बस हो गया है, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट है, हालांकि एक्सपीरियंस नहीं है। क्या है ये? टास्क कंप्लीशन, टास्क कंप्लीशन। चिकन बन गया बच्चों, आ जाओ। ओके, टास्क कंप्लीशन। ओके, चिकन बन गया, उतार दो, बंद कर दो, आंच बंद कर दो, है ना? ठीक है, और बताओ। टास्क कंप्लीशन। हम्म, हाँ, हम घर पहुंच गए हैं, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, टास्क कंप्लीशन। ठीक है, खाना खा लिया है, हम लोग मैच जीत गए हैं, हम लोग मैच जीत गए हैं, बहुत बढ़िया। टाइम पता चल रहा है कभी? तो ध्यान देने वाली बात क्या है, चाहे ये यूज हो चाहे वो यूज हो, एक्शन का टाइम नहीं पता कि कब जीते, कब खाना खत्म किए, नहीं पता। और एग्जांपल्स, आई वांट मोर एग्जांपल्स। एडमिशन ले लिए हैं, एडमिशन कब लिए पता चला? नहीं ना, तो टाइम ऑफ द एक्शन इज नॉट मेंशन इन द प्रेजेंट परफेक्ट, रिमेंबर दिस। करेक्ट, बस इतनी सी बात है। एंड इफ यू मेंशन द टाइम इट विल चेंज टू पास्ट सिंपल। ओके, पास्ट सिंपल। तो दो यूजेस हो गए। मैं जाग गया हूं, ठीक है, जगना बाकी नहीं है। टास्क कंप्लीशन में वर्ड्स अक्सर यूज होते हैं, जस्ट, ऑलरेडी, और जैसे मम्मी ने कहा बेटा ब्रश कर लो, ब्रश कर लिए हैं मम्मी, आई हैव, अरे मम्मी ने Already, कहा ब्रश कर लो, और बोला ब्रश कर लिए हैं मम्मी, आई हैव already, ऑलरेडी ब्रश्ड माय टीथ।
बेटा होमवर्क कर लो बेटा। मम्मी होमवर्क कर लिए हैं। आई हैव, already ठीक done है। my homework. I have already done my homework. अभी तक उसको पैसा नहीं दिए हैं, बाकी है देना, राइट? आई हैवंट I पेड haven't हिम yet. I paid him. haven't Paid paid him. him yet. I haven't paid him yet. इजी, ये येट भी है, वही टास्क कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ इजी बताने के लिए। तो टास्क कंप्लीशन के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट के दो यूसेस हो गए, अब थर्ड यूसेस हो गया। एन एक्शन और ए सिचुएशन started in the past, continued to the present, has continued to the present. An action or a situation started in the past and it continues to the present. Maybe it has just ended, or maybe it will continue in the future as well. Maybe, we don't know for sure. Maybe it has just finished, okay, now, or maybe it will continue in the future. दोनों ही situation. चूंकि there is a duration started, the situation started, unfolded in the past. The action started in the past, has continued to the present. मेरी बात समझ में आ रही है? जरा रिपीट करके दिखाइए मैं क्या बोल रहा हूं। A situation, an action started in the past and The continued in the ये present. कौन से टेंस इंग्लिश में इसको एक्सप्रेस कर पाता है? ऐसे सिचुएशन को कौन से टेंस से एक्सप्रेस करते हैं? हाँ जी, जैसे इतना, जैसे हम 40 साल से बिहार शरीफ में हैं, हम 40 साल से बिहार शरीफ में हैं। अब बताओ, ये सेंटेंस सुनने में प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगता है, हिंदी में नहीं लगता, हिंदी में नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए आप बोलते हैं हम बिहार शरीफ में हैं, हम बिहार शरीफ में 40 साल से हैं, गॉट इट। लेकिन इंग्लिश में ये आई एम इन बिहार शरीफ से नहीं बोला जा सकता। आई एम इन बिहार शरीफ मतलब हम बिहार शरीफ में हैं, लेकिन 40 साल से हैं, यानी 40 साल पहले आए। दी सिचुएशन स्टार्टेड 40 years ago, अभी भी तक कंटिन्यू हो रहा है, हम 40 साल से बिहार शरीफ में। ठीक है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, इंग्लिश तक नहीं जाने की जरूरत है हड़बड़ा करके। जिन बातों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस पर ध्यान दे दीजिए। आपके हड़बड़ी का मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर ये कुछ करेगा तो सिर्फ आपके लिए बड़ी मुसीबतें क्रिएट करेगा, तो बी क्वाइट एंड लिसन केयरफुली। ये हिंदी में है क्या प्रेजेंट परफेक्ट? दूसरा सेंटेंस लीजिए, हम आपको 2 साल से जानते हैं, यही सेंटेंस लेके आए थे ये, लेकिन समझा नहीं पा रहे थे। पता है ये जानने का काम कब शुरू हुआ और अभी तक 2 साल पहले। कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, हो सकता है फ्यूचर में भी जानेंगे ही उसको। हम आपको 2 साल से, हम बीमार हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है? नहीं है। लेकिन हम 1 सप्ताह से बीमार है, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्यों? 1 सप्ताह पहले कंटिन्यू बीमार, हो रहा है। अभी तक है, हो सकता है आगे भी रहे 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, नहीं पता। ये अभी तुरंत ठीक हुए हैं, ठीक है, 1 सप्ताह से बीमार हैं, तो जरा समझिएगा। आई एम सिक मतलब मैं बीमार हूं, प्रेजेंट है, सिंपल है। आई एम सिक में वर्ब क्या है? बी वी। We were. और Be प्रेजेंट verb. परफेक्ट बी का कौन सा फॉर्म यूज होगा? आई हैव बीन। Been. Been. थर्ड Been. फॉर्म यूज होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ बीन V3 लगता है। तो आई तो है सब्जेक्ट, आई के साथ हैज लगाऊं कि हैव? हैव I have been. और उसके Have बाद बीन। थर्ड फॉर्म आई हैव बीन सिक। ऐसे नहीं बोलना, हैव बीन एक साथ नहीं बोलना, एक साथ नहीं, आई हैव हो गया। आई हैव वर्ब 3 चाहिए। मुझे छोटी छोटी सी बातों से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कभी हैव बीन को अप्रिशिएट नहीं करेगा। हैव बीन एक वर्ड सोचेगा उसका दिमाग। कई लोग हैव बीन एक समझते हैं, लिखते हैं अलग अलग, एक साथ बोलते हैं हैव बीन। मैंने कहा आई के साथ हैज या हैव डिसाइड कर लिया, उसके बाद V3 चाहिए। कौन से वर्ब का? क्योंकि तुमने कहा मैं बीमार हूं, आई एम सिक, उसी से है ना, तो बी वर्ब का ही है ना फॉर्म एम, तो बी का तीसरा फॉर्म चाहिए हैव के बाद। क्या होता है?
I I have have been been sick for 1 week. weak. इसमें फॉर और सिंस बड़ी कॉमन है, ये थर्ड यूज में। जब एक्सपीरियंस वाला बात आया तो एवर और नेवर कॉमन होता है उसमें। एवर और कॉमनली यूज होते हैं। common. टास्क कंप्लीशन में येट, ऑलरेडी, जस्ट, ये कॉमन होते हैं। और ये एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट हैज कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट, इसमें फॉर और सिंस काफी कॉमन है। 2023 से हम इस स्कूल में हैं, हम इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। 2023 से हम इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो आई एम स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज 2023 से यानी पास से अब तक तो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। An action started in the past has continued to the present. ठीक है, तो I again have been a A student student. since 2013 in this school. मेरे पास एक घड़ी है 2012 से है वो घड़ी मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास एक घड़ी का इंग्लिश I have a Had watch. a watch. Have a watch. I Had have a a अगर watch. बोला 2012 से है तो आप क्या बोलेंगे? रुक जाइए, फिर वही आप गलती पहले स्टेप पे कर चुके हैं, नहीं सीखे हैं। पहले कौन सा टेंस है 2012 से है? 2012 से है घड़ी मेरे पास, कौन सा टेंस है? कौन सा perfect. टेंस है? चलिए Perfect. सेंटेंस इंग्लिश करिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप गलती कर रहे हैं। नथिंग। तो ये बीच में जाके सेंटेंस भूल गए। No, actually, my word works because of your impression. Don't blame it on my facial expression. You were in a haste, you were in a hurry, that's why it happened. Got it? You were in a hurry. When you are hurriedly trying to answer, you're not focused on learning. So focus on learning. There is no need to compete with anybody here. Everybody is in their own place. They are learning at their own pace. They don't have to compete with anybody here. आप अपने आप देखिए कि मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ। सारे लोग बोलने की कोशिश करिएगा। मेरे पास ये घड़ी 2012 से है। I have had a watch since हाँ, क्या बोले? 2012. ये कौन सा टेंस है? आई हैड दिस वॉच। घूम टहल के आओ, क्योंकि सारा तो खा गए, जो बोला सारा सुन लिए, फिर करना नहीं है वो चीज, तो ये तो जिद्दीपन ही है। जो करना, कौन सा टेंस होना चाहिए था ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो? मेरे पास 2012 से एक घड़ी है, कौन सा टेंस है? छोड़ो, नहीं बोलना, तुम बताओ कौन सा टेंस है? मेरे पास ये घड़ी 2012 से, कौन सा टेंस है? आर यू श्योर? क्यों? अभी एकदम कान हटने वाला काम हो रहा है। नहीं नहीं, तुम पहले डिसाइड कर लो, तुम इसके साथ हो उसके साथ। हम बोलो सिकंदर, तुम बोलो। पक्का है? इंग्लिश करो, एक्सपीरियंस है। तो हम जो इतना देर से लेक्चर दे रहे हैं थर्ड यूज के बारे में, वो कहाँ गया? क्या मेरा थर्ड यूज क्या था प्रेजेंट परफेक्ट का? पहले हिंदी में An action started in the past and continued in the present. हाँ, और अभी तक जारी है और दूसरे के आगे। तो कौन इसमें क्या ये फिट होता है? ये सेंटेंस मेरा इस एक्सप्लेनेशन में क्या है इसमें ऐसा बताओ? घड़ी 2012 से है और 2012 में ली, हाँ। अब उससे उस समय से अभी तक है। हो सकता है रहे ना रहे, वो मैटर नहीं है, वो तो दोनों ही सिचुएशन हो सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, पक्का हो गया। अब इंग्लिश करो। अच्छा, पहले इतना बोल दो, आई हैव दिस वॉच प्रेजेंट परफेक्ट है, हाँ या ना?
दुलाल। सब लोग आई हैव दिस वॉच बोले जा रहे हैं। I have had this watch. वेल डन। तो जब तुम कहते हो आई हैव दिस वॉच प्रेजेंट में, तो वर्ब क्या है तुम्हारा? हैव है ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे इसको, तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? I हैव have का B3 क्या होता I है? have had. हैव का Had. B3 क्या होता है? had. बोलो। आई I have आई के had. साथ Have. डायरेक्ट है। अरे प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट पास B3 बोलते हैं कि हैज पहले बोलते हैं? नहीं, बता दो। पहले V3 बोलते हैं। हाँ देखो। I had some. बट आई हैव Have had. हैड I have had. कॉन्सेप्ट नहीं है ना। प्रेजेंट परफेक्ट को रट्टा मारा हुआ, आई हैव सीन। फिर से जैसे तुमने आई हैव बीन बोला था, मैंने डांट लगाए थे तुमको कि एक साथ में नहीं बोलोगे। पहले डिसाइड करो, आई के साथ हैज या हैव लगाओ, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। लग गया। अब V3 ढूंढो। सीन बोल दें, ईटन बोल दें, क्या बोल दें? हैव का V3, क्योंकि वर्ब वही है, घड़ी पास में होना हैव होता है ना। तो आई हैव had this watch since 2012. I've had this watch। ये थर्ड यूज है कि फर्स्ट यूज है कि सेकंड यूज है? कौन सा यूज है ये? तो Third तुम रहे थे इसको। Well, that I have this watch till now. और तुमने इसको कहा था पास्ट सिंपल। बड़ी काम करो अपने कॉन्सेप्ट पे सब लोग, ताकि समझ में आए कि हाँ ये चीज बताया गया। डिसाइड तुम्हें ही करना है। एक लाइन मैं बताऊंगा, जिंदगी भर तुम्हारे साथ तो मैं नहीं रहने वाला। यू गाइस हैव टू डिसाइड। देख कर अच्छा ऐसे। ओके। ये बच्चा मेरे साथ 4 महीने से है। दिस बॉय Boy. Have had. Has been Have had. for last 4 months. अच्छा एक सेकंड बताओ, मेरे पास मेरे साथ है तो ही इज विद मी पहले प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं, क्या होना चाहिए? ही हैज कि ही इज? He is. ही इज। तो इज बोलते के साथ तुम्हारे दिमाग को मैसेज क्या जाना चाहिए कि वर्ब क्या है? बी। He be. पहले पहले ये तो डिसाइड कर लो वर्ब क्या है तुम्हारे सेंटेंस का। ही इज विद मी, ये प्रेजेंट सिंपल है, ही इज विद मी। लेकिन हम प्रेजेंट सिंपल में नहीं बोल सकते, प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना पड़ेगा। इंग्लिश में स्पेशल रूल है ये किसी लैंग्वेज में नहीं है, सिर्फ इंग्लिश का ये रूल है। बाकी हिंदी में कैसे बोलते हैं? मेरे साथ है और फिर जोड़ दिया। 6 महीने से, 4 महीने से, कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। लेकिन ही इज विद मी में नहीं जोड़ सकेंगे, क्योंकि इसका टेंस बदलना पड़ेगा। ही इज विद मी को प्रेजेंट परफेक्ट में बोलो। He has He been has with me be. for With me। 4 months. चलो सबसे पहले ही करते हैं। आई ईट का प्रेजेंट परफेक्ट बोलो। I ate. आई ईट का मैंने सोचा था फॉर्म क्लियर है, इसलिए मैं आगे बढ़ा था। यू गाइस क्लियरली आई हैव कंफ्यूज। I आई have ईट eaten. का प्रेजेंट परफेक्ट I have I have eaten. I have eaten. I have eaten. आई सिंग का प्रेजेंट परफेक्ट। I have I sat. have some. Absent. दे स्मोक का प्रेजेंट परफेक्ट। They have. They have smoked. spoken. किसी ने गलती कर दी ऑनलाइन। दे स्मोक का प्रेजेंट परफेक्ट फिर से They have ऑनलाइन। smoked. They have smoked. They दे have हैव, इसमें आई दे स्मोक वर्ब है, इसमें हेड कहां से आया? They have. दे हैव स्मोक्ड। smoked. पहले तुम्हें समझना पड़ता है वर्ब, ओके, ताकि वर्ब 3 समझ सको। दे स्मोक, दे सब्जेक्ट, स्मोक V1। अब V3 क्या होगा स्मोक का? स्मोक। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे चले चेंज करेंगे? दे They have have smoked. smoked। Smoked. One more time, one more time। she loves, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। She has Has loved. जल्दी बोलिएगा। Laughed. She has. She has Has loved. loved, she loves। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होता है प्लस होता है। तो वर्ब लव तो दिख रहा है ना, इसका V3 क्या होगा? लव्ड। Loved.
he has loved। आगे पूरा बात बढ़ेगा। टेंस का इतना देना देना है, टेंस यहीं तक है, बाकी जो होगा सब मीनिंग पे डिपेंड करेगा, राइट। वह पैटर्न्स पे डिपेंड करेगा, टेंस इतना तक है। टेंस कितना डिसाइड करता है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है ना वो कैसा दिखेगा, यही टेंस का डिसीजन होता है। टेंस का इससे आगे कोई लेन देन नहीं, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ वर्ब तक रह रहा हूं। चलिए, हम लोग बोलते हैं वी स्पीक, राइट। प्रेजेंट सिंपल है, वी प्लस V1, वी स्पीक, प्रेजेंट सिंपल। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करिए, We have spoke. Yes. have spoken। इसको पास्ट सिंपल में बोलिए, We We spoke. we spoke. We राइट। spoke. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलिए, We are We speaking. We are spoken. we are speaking। speaking. वाह, well, ये भी अच्छी बात है, कितना कर ले रहे हैं आप। ओके, गुड। बहुत लोग ये भी नहीं कर पाते। जब भी आप ज्यादा नीचे गिरने लगे, आपको बुरा लगने लगे, तो अपने इस नीचे वालों की तरफ देख के कहिए हम अभी ठीक ठाक है। ज्यादा ऊपर लगने लगे ना, हम बहुत सीख रहे हैं, तो अपने सुपर वालों को देख के कहिए अरे रे बहुत कुछ सीखना है, ताकि आप एक गुड मेंटल स्पेस में रहें हमेशा। ओके, नेक्स्ट। इट लिव्स, इट लिव्स प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दिए। He It has has lived. It क्या आपको has. पैटर्न पता चल has चुका है? lived। अब यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है, सही है। एक लड़की को खास करके पूछा जाएगा, वही सारे जवाब देंगी, ठीक है। हवा ने तो दिमाग में, हवा ने तो दिमाग में, इसलिए जवाब नहीं आ रहा सही से। हाँ, दिमाग में हवा है, ठीक है। अब देना जवाब। सवाल है नैन्सी हेट्स, नैन्सी हेट्स। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करो। Nancy. Nancy. प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान बताओ। कल मैंने क्या कहा था कि फॉर्म तो सबको पता है, और सब कह दिया हाँ 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 हाँ, तो हम आगे बढ़ गए, यूसेज पे आ गए। हमने क्या कहा था कि फॉर्म तो सबको भैया भैया क्या, जैसे कि तुम इस चेहरे को देख के बोलते विनय सर है, इस चेहरे को देख के नहीं ना बोलोगे विनय सर, यानी पहचानती हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहचानोगी कि प्रेजेंट परफेक्ट है? कौन सा हिस्सा वहां दिखेगा तो तुम्हें लगेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट? क्या दिखना चाहिए एक सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होने के लिए उसमें क्या क्या होना जरूरी है? सब्जेक्ट कोई भी टेंस में होता है लाल, उसका कोई एक टेंस से लेना देना नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट है इस, ये कैसे पता चलेगा? खाली V3 रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट पता चलेगा, लल्लू लाल, ठीक है। नहीं, सही नहीं है, तुम बता दो बेटा। अरे सब्जेक्ट को गोली मारो, सब जगह कॉमन है तो क्या बोलने की जरूरत है? वर्ब कैसा फॉर्म में होगा? तो दो एलिमेंट्स होंगे। आते के साथ मैंने किया था क्या आज? आते के साथ ये बात करी कि दो एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। क्या कर रही थी तुम उस समय? और कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिसके जो रहेंगे तभी वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है? क्या है वो? तो तुम खाली V3 क्यों बोली? खाली V3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। कह रहे दो एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से? हैज या हैव में से एक होगा, और ये दोनों दिखेंगे तो ही V3 सेंटेंस प्रेजेंट has परफेक्ट, नहीं तो नहीं है, बात खत्म। तो तुमने जो चेंज किया वो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज किया। मैंने कहा नैन्सी हेट्स, तो तुमने उसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज किया। अब करो। कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करना है हैज हैव के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में? तो हेट का वर्ब 3 क्या होता है? हेटेड। जितना स्लो हो गई हो ना, इसी स्पीड में बातचीत करना, सोच सोच के, ताकि अच्छा सीख सको। प्रॉब्लम क्या है, अभी कितना टाइम ले रही हैं? जब भी बात करेंगे तो जल्दी जल्दी बोलेंगे, राइट। तो यही प्रॉब्लम है, आप लोग बोलते समय जल्दी जल्दी बोलते हैं, पढ़ते समय जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। चाहिए आपको कि आप सोचे थोड़ा सा, जैसे अभी सोच रहे हैं, ताकि आप सीखें बोलते समय भी, हाँ मैंने ये किया, हाँ मैंने वो किया, आदत पड़ जाएगी, खत्म कहानी। नैन्सी हैज हेटेड, ये कौन सा टेंस है? और नैन्सी हेट्स Present simple. पास्ट सिंपल क्या होगा? Nancy hated. पास्ट सिंपल कौन सा फॉर्म होता है पता है तुम्हें? बताओ क्या होता है उसमें? उसका पहचान जैसे हैज प्लस हैज हैव या V3 होगा, हैज हैव प्लस V3 होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट सिंपल होने के लिए क्या होना चाहिए?
क्लास 3 के बच्चे मेरे बोल देंगे फटाक फटाक, सारे सारे के सारे बोल देंगे ये बात। चुप रहो, सिर्फ V2। क्या We का दूसरा फॉर्म? इतने देर से कर रही हो तुम ये सब और फिर ऐसे कर रही हो बदमाशी। यू मस्ट बी पनिश्ड फॉर दिस, यू मस्ट बी पनिश्ड फॉर दिस। सब्जेक्ट के बाद सिर्फ कौन सा फॉर्म? V2 V2 पास सिंपल, बस V2, बात खत्म। V2 दिखा, पास सिंपल बोल दिया। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 दिखना चाहिए, खत्म हो गया, पास सिंपल। यही है ना? चले एग्जाम्पल लेते हैं और आप दीजिए मुझे आंसर्स। तुम भी सोचोगी जैसे उसके पास से तुम्हारे पास आ जाएंगे, ठीक है? इंडियंस लव, इसका प्रेजेंट परफेक्ट बोलिए। इंडियंस हैव लव्ड, वेल ट्राइड। ओके, आयत बेटा। मदर्स ईट, इसका प्रेजेंट परफेक्ट बोलिए। मदर्स अगर बोलेंगे तो हैव, और मदर है तो हैज। किसको किसको हैज और हैव में फैसला लेने में मुश्किल होती है? अच्छा, तो मुझे ये बताओ, हैज और हैव में एस किस में लगा है? हैज में लगा है ऑब्वियसली। और एस जिसमें लगा होता है वो किसके लिए? ही शीट के लिए। बस खत्म। तुम क्या बोलते हो? ही गो, ही गोज, एस है ना? किसके लिए? ही। आई के लिए? आई गोज, आई गो, कनेक्शन है। अब बताओ, आई हैव कि आई हैज? और ही, बस। ठीक है, तो हैव हैज में फैसला कैसे लेते हैं? सब्जेक्ट के हिसाब से। गॉट इट? तो मैंने आपको कहा मदर्स ईट, मदर्स प्लूरल है ना? अब आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगी। मदर्स प्लूरल, मदर्स हैव eaten, right? Mothers have eaten. Okay. Shams, your turn. Bumrah bowls. Bumrah bowls. B-O-W-L-S. Bumrah bowls. Present simple. अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दीजिए। बुमराह हैव बोलना है ना? क्यों? हाँ, ही है ना? ठीक है। बुमराह हैज बोल्ड, बुमराह हैज बोल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। ओके। पहचान, कल मैंने क्या बोला था आपको कि पहचान तो आपको पता है, चलिए यूसेज पे चलते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ गई? पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आपके सामने 2-3 लोग बैठे कर रहे, राहुल बाबू कौन है? वो हमरा को जी पता होकर कैसे नाक आंख हमको पते नहीं। तो फिर आगे उसके बारे में बात करने से क्या फायदा? तो जब तक आप प्रेजेंट परफेक्ट पहचानेंगे नहीं, आगे बातें बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। तो फिर से रंडी वाला लोग पता है पेन की चप्पल वाला प्रॉब्लम। समीर, इट्स वेरी नॉइजी फ्रॉम योर साइड। समीर, मां बदौलत तुम्हें सजा देंगे, सजा देंगे, दुल्हन की तरह सजा देंगे। ऑलराइट, ओके, वर्ड प्ले। पहले सजा देंगे, फिर क्या हो गया वो? सजा देंगे। ओके, तो सिली जोक्स होते हैं ये, लेकिन लैंग्वेज नर्ड्स के लिए ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको लगे चाहे नहीं लगे मजेदार, लेकिन लैंग्वेज नर्ड्स वो लोग हैं जो ऐसे ही उठ पटांग जोक्स बनाते रहते हैं, वर्ड्स के साथ छेड़खानी करके। Okay, you can find some such jokes on my Facebook wall as well. Whenever I see some jokes somewhere, I share language jokes. Okay. तो we find का present perfect बोलिए। we have We have have found found, ठीक है? अब आपको found लेके चलते हैं मुश्किल वाले पे, ठीक है? We are का present perfect बोलिए। we have we have been है ना? We are का present perfect क्या होगा? We have been, we have been। कैसे हुआ समझ जाइएगा। yes sir आर बी वर्ब से है, प्रेजेंट परफेक्ट बोलना है, बी के साथ हैव लगा लिए, P3 लगा लिए, वी हैव बीन। been वी आर का प्रेजेंट परफेक्ट, we ही have इज का प्रेजेंट परफेक्ट, he has ही हैज He बीन has प्रेजेंट been. परफेक्ट किसका?
ही इज का He is. ओके यू आर का प्रेजेंट परफेक्ट You have been. You have been. been. इट इज का प्रेजेंट परफेक्ट It has been. चला गया कल It तक has रहेगा ज्यादा से ज्यादा, मुझे लगता है फिर भूल जाओगे एक और आई हैव का प्रेजेंट परफेक्ट I I I have I had. have been. कर I दिया ना have हो had. बोले तो I समझ आ have गया had. आई हैव का प्रेजेंट परफेक्ट बोलिए I I- have इसको बोले had. बेटा देख I have had. आई एम का प्रेजेंट परफेक्ट I have been. I have I have- been. एंड आई हैव का प्रेजेंट परफेक्ट I have had. I have had. I have Had. had. I have had. तुम बताओ आई हैड प्रेजेंट परफेक्ट है ये नहीं, ऐसा नहीं कुछ कुछ बोलने के लिए नहीं बोलना कॉन्फिडेंटली बोलना है ताकि कंफ्यूजन रहे तो मैं हेल्प करूं आई हैव का प्रेजेंट परफेक्ट आवाज गायब हो गई तुम्हारी बाहर आनी चाहिए आवाज आई हैव का प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है आई एम का प्रेजेंट परफेक्ट अगर कोई अभी तुम्हारे दिमाग में कंप्यूटर लगा के सारा कुछ पता चले तो अंदर बिजलियां चौंध रही होंगी क्या हो रहा है क्या हो रहा है हाँ बोलो आई एम का प्रेजेंट परफेक्ट देखो चेहरे कैसा बन रहा है कितना मेहनत करी बेचारी सही कैसे हुआ क्योंकि आई के साथ हैव आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में उसको कोई रोक नहीं सकता चाहे वर्ब कुछ भी आए और वर्ब 3 क्या है तो आई एम जो वर्ब है बी वर्ब उसी का थर्ड फॉर्म तो आई एम से तुमने आई हैव बीन बनाया तो आई हैव से कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा क्या बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट तुम बताओ हंसिका है चारों एक ही घर से लेकिन थोड़ा ना थोड़ा वो आगे बढ़ जाती है कहीं ना कहीं हाँ भैया बताता हूं फिर से कैसे है सुनो ना बताता हूं आई हैव इसको प्रेजेंट परफेक्ट करें तो है प्रेजेंट सिंपल आई हैव खाली इतना बोले आई हैव तो कौन सा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट मत बोल देना क्योंकि V3 मिसिंग है ये प्रेजेंट सिंपल है ओके एक्चुअली हैव तो ना तुम महसूस नहीं करते तुमको कभी समझ नहीं आता है क्या एक्चुअली तो तुमने कहा आई हैव अ डॉग कौन सा टेंस तुम बताओ तो बेटा आई हैव अ डॉग कौन सा टेंस परफेक्ट नहीं है क्यों नहीं है अगर इसका जवाब दे दी तो 5 रुपए का चॉकलेट Because आई हैव अ डॉग हाँ I there is not 5 रुपए का चॉकलेट जीत गई ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन वेल डन इसमें V3 इज मिसिंग आई हैव अ डॉग में V3 नहीं है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है बढ़िया अब वर्ब क्या है हैव है ना वर्ब इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ना प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है हैड तो थर्ड फॉर्म है हैड लेकिन सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से कोई एक चाहिए ना V3 के पहले तो आई हैव हैड यह है प्रेजेंट परफेक्ट because please tell her to open her head because she is offering. Yeah. ठीक है बात समझ आ रही है आई हैव हैड किसका प्रेजेंट परफेक्ट है आई हैव का फिर से बोलिए दे हैव हैड किसका प्रेजेंट परफेक्ट है दे They हैव have. और शी हैज का प्रेजेंट परफेक्ट She has had. शी हैज हैड ठीक है फॉर्म समझ में आ गया ठीक है अब बोलना है मेरे पास एक घड़ी है 2012 से आई हैव हैड क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए आई हैव हैड ए वॉच since 2012 I've had a watch since तो अब बताओ जब भी ऐसा पढ़ाने के बाद अगर लगे हुए हैं ना ये तो नहीं कहा कि सिलेबस खत्म करना आगे बढ़ो ये वो लगे हुए हैं ना एक एक इंडिविजुअल के कंफ्यूजन को अब ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको एड्रेस कर रहे हैं ना अब ऐसे टीचर्स क्या उम्मीद करेंगे कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनिक प्रैक्टिस होनी चाहिए ईमानदार सिंसियर खुद से जाकर के जो मन में आए लिखे जो सीखे उससे और फिर गलती हो जाएगी फिर एक कदम आगे बढ़ाएंगे कल
आप जा करके बदमाशी करो, ये हेल्प वो हेल्प, ताकि आप अच्छा लिख के ला सको, तो मेरे को कैसा लगेगा? हम्म। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि बच्चों को स्कूल में ऐसे टीचर्स से मुलाकात हुई है जो मेरे जैसे नहीं पढ़ाते हैं। मेरे जैसे मतलब मैं पढ़ाने के स्टाइल की बात नहीं कर रहा, एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। I genuinely want to bring a change in him. And for that, I'm ready to slow down my speed of teaching. जैसे कि कल 3 दिन से हम लोग ये बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट, आज तीसरा दिन है मेरे ख्याल से, राइट? और अभी सिलेबस में देखा जाए कोर्स में तो फर्स्ट पेज पढ़ के हम लोग, राइट? इट्स बीन 3 days। क्योंकि जो एक्सरसाइजेस है ये रीड है, ये बेसिक है जो जान लेना आपको, इसी को अप्लाई करना एक्सरसाइजेस। और ये पता ही नहीं था एक्सरसाइज उल्टा पुल्टा होता रहेगा, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू द एक्सरसाइजेस राइट नाउ। तो बेटा 3 यूजेस हैं। फर्स्ट, एक्सपीरियंस वाला। चलो, आई हैव अ बात का प्रेजेंट परफेक्ट, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट है? आई हैव अ बात, तुम बताओ बेटा, आई हैव अ बात प्रेजेंट परफेक्ट है? इज इट प्रेजेंट परफेक्ट? आई हैव अ बात प्रेजेंट परफेक्ट है? आई हैव अ बात है, हाँ या ना? आई हैव अ बात, आई हैव अ बात नहीं है, क्यों नहीं है? आई हैव है, लेकिन हैव के बाद क्या है? एक बात है, नाउन, यानी ये हैव V1 है, हमारे पास V3 है ही नहीं, ये प्रेजेंट सिंपल है। इसका हिंदी क्या होगा? आई हैव अ बात का नहाता हूं, आई हैव अ बात ऑन द रूफ, आई हैव अ बात, हम छत पे नहाते हैं, ठीक है? तुम कभी छत पे नहाए हो? एक्सपीरियंस है ना? पूछ के बताइए, मेरे से पूछिए। Have you ever had a bath on the roof? Have you ever had a bath एवर You had had on the हैड बात, वर्ब 3 आ गया ना? हैव यू एवर हैड अ बात ऑन द रूफ? एनी प्रॉब्लम्स? हैव अ पार्टी मतलब पार्टी करना। आई हैव अ पार्टी ऑन सैटरडे नाइट, बोलिए। आई हैव अ पार्टी ऑन, आई ऑफन हैव अ पार्टी ऑन सैटरडे, हिंदी करिए। मैं सैटरडे नाइट में पार्टी सैटरडे करता नाइट हूँ। को पार्टी करते हैं, ठीक है? आप सवाल पूछना, आप कभी मम्मी पापा के एब्सेंस में पार्टी किए हैं? Have you ever हैव यू party एवर had 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 a The party party in the absence of of your in your the parents. absence parents? of your parents? parents? of your parents. आई एम इन ट्रबल, आई एम इन मतलब मुश्किल में हूं मैं। आप कभी मुश्किल में आए हैं? Have you Have you ever ever You ever, been क्या था, in मैं a मुश्किल में हूं? trouble? देख have लो you क्या है ever इसका, been आई एम इन ट्रबल, यू आर इन ट्रबल, इसमें वर्ब कौन सा है? be बी verb? वर्ब, तो बी का ही V3 यूज होगा। Have you ever been in हैव trouble? यू एवर Been बीन इन in ट्रबल? हैव यू एवर Been in trouble. in a in have you ever been in trouble? Got it? Have you Got ever have you ever been in trouble? Okay. Any problems? कुछ समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट बेहतर, फॉर्म भी समझ में आया? पहले तो फॉर्म समझना था, रूप देख करके बता दें ये प्रेजेंट परफेक्ट। उसमें 2 चीजों का होना जरूरी है। व्हाट आर दो 2 एलिमेंट्स? has have and अगर V3. कल खा गए तो Yes, 5 रुपए का गिफ्ट दिए, 50 रुपए का फाइन ले लेंगे, ठीक है? अगर कल ये गड़बड़ हुआ है जवाब देने में, या परसों या तरसों किसी दिन, तो उसी दिन 50 रुपए का फाइन ले लेंगे, ओके? बिकॉज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस टू यू। पहले प्रेजेंट परफेक्ट होता है कैसा है? सब्जेक्ट, अरे सब्जेक्ट सब में होना है भाई, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं होता, खत्म बात, हो गया। चाहे प्रेजेंट सिंपल हो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट सब जगह, तो क्या जरूरत है? हाँ, ये 2 एलिमेंट्स हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और पास्ट सिंपल के लिए बस, me too. ठीक है? मोर We love. Love is already everything. V3 नहीं, लव्स, ही लव्स, एस लगता है, वो V3 नहीं होता, इनिशिएट फॉर्म होता है प्रेजेंट के लिए। हाँ, V5 बोलते हैं उसको, ही लव्स, ओके?
He loves his country, right? He loves his country. He loves his mother. ED is both. हाँ हाँ, V2 V3 में ED होता है, ठीक है, रेगुलर वर्ब्स के। एंड इफ यू हैव इरेगुलर वर्ब्स तो उसमें कुछ भी हो सकता है, एक नया वर्ड आ जा सकता है। गो का V2 क्या होता है? नया वर्ड ही आ गया पूरा, गो गायब हो गया, वेंट आया, राइट? फनी, इजंट इट? तो इसलिए इरेगुलर कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है, रैंडम चेंजेस। Irregular verbs have random changes in their forms for V2 and V3. एक इंटरेस्टिंग irregular verb बताता हूँ, beat. Beat का V2 beat, V3 beaten. 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 V2 remains the same, beat और फिर beaten. अरे भाई उसमें भी चेंज कर देते, क्या दिक्कत है? English is funny like that, okay? वो तो सब में साथ है तो चल जाएगा। कट कट कट, लेट पुट आसान लगता है, लेकिन ये क्या है भैया कि बीट का V2 बीट रहेगा लेकिन V3 बीटन होगा। अजीब। आई फाइंड दिस वन रियली क्रेजी, अ लॉट ऑफ पीपल गेट इट रॉन्ग। वो बीट का V2 क्या सोचते हैं? बीटन, लेकिन है क्या? बीट, जस्ट कथस, नो चेंज, एंड V3 चेंजेस। सो किसी से V1 V2 V3 खेल रहे हो ना, तो सबसे ज्यादा इसी वर्ड में फंसाओगे तुम। किसी को बीट का पूछ देना V2, वो बोल देंगे बीटेड, बीटन, कुछ भी, तो छोड़ नहीं पाएंगे बीट तक, क्योंकि बीटन सुना रहता है ना। तो जहां बीटन आता है, जैसे ईट, एट, ईटन, ठीक है, तो V2 में चेंज होने की आदत पड़ी हुई है। देर आर वेरी फ्यू वर्ब्स जहां V1 और V2 एक साथ रहे और V3 अलग हो जाए, वेरी फ्यू, ठीक है। बीट इज वन ऑफ वेरी फ्यू। ज्यादातर V2 V3 एक जैसे होते हैं, जैसे टीच, डॉट, ठीक है, बाय, बॉट। लेकिन V1 V2 एक जैसा और V3 अलग हो जाए, दैट्स वेरी रेयर। V2 अक्सर चेंज होता है, रन, रैन, रन, कम, केम, कम। V1 V3 जैसे एक जैसा हो गया, आदत है इसकी। लेकिन V1 V2 एक जैसे हो, इट्स ओनली देयर एट द मोमेंट आई कैन ओनली थिंक ऑफ बीट, या ओके। मोर तो प्रेजेंट परफेक्ट। 3 यूसेस, वापस आता हूं। एक्सपीरियंस, और तुम फटाक से डिसाइड करो कि ये सेंटेंस जो है वो फर्स्ट यूज के लिए कि सेकंड यूज के लिए कि थर्ड यूज के लिए। मैं बताता हूँ, एग्जांपल्स दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? तो बोलो कि मैं 2010 से बिहारशिप में हूं। कौन सा? पहला यूज, सेकंड यूज, थर्ड यूज? पक्का है ना? इसमें फॉर और सिंस। अरे अभी अंडा बॉईल नहीं किए हैं। Second The use. second use. टास्क कंप्लीशन, हम कभी अंडा नहीं खाए हैं। First use. इजी है ना? The इतना first. मुश्किल भी नहीं है जैसा तुम लोग समझ के बना के रखे हो, नहीं है इतना मुश्किल, राइट? इट्स इजी, यू हैव अंडरस्टूड? चलो फाइन, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? अब चले एक्सरसाइजेस पे, ये सब लेके चले दिमाग में, जितनी बात मैंने बताई। विल यू बी एबल टू होल्ड इट? बर्तन है मजबूत, छेद नहीं है ना बर्तन में? टप 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 सब चू गया थोड़ी देर में। क्या बताए थे? कुछ याद नहीं। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ रील्स एंड शॉर्ट्स। बच्चों को पढ़ाना इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर टीचर्स फॉर वन बिग रीजन। Children use phones so much, they are losing their mental ability to be focused on one thing for a little long. 15 seconds, 20 seconds, reels last, a short lasts 15, 20 seconds, a new short, a new reel, topic changes. So because of this, our ability to focus on one topic, one matter for a long time is kind of getting messed up, you know, and that's why a lot of students सामने सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, फिर कहेंगे क्या हुआ, नहीं पता, कुछ नहीं, खो गए, फोकस नहीं कर पा रहे। तो रील्स और शॉर्ट से दूर रहिए। मोबाइल लीजिए, गेम खेलिए जितना खेलना है, आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, बट स्टे अवे फ्रॉम रील्स एंड शॉर्ट्स। लेकिन आज की बीमारी है रील्स एंड शॉर्ट्स, आदत पड़ जाती है बहुत तेजी से। देखो बेटा, अगर बिजनेसमैन, मैं ऐसे बोलता हूँ, पैसे के भूखे लोगों को अगर मौका मिला ऐसा जहर बनाने का जिसको खा खा के धीरे धीरे 100 साल में लोग मर जाएंगे, तो लोग बना देंगे। ड्रग्स बिकते हैं ना, लोग बचते हैं, ड्रग्स करने वाले लोग नहीं। जिसको भी ड्रग्स की लत लगी वो 4 से 6 साल में मर जाता है, ठीक है, ज्यादातर ड्रग्स में, ओके। बहुत कम ही रिकवरी है कि छोड़ दें आप। तो why do people sell drugs? Because people who are hungry for money, they don't care about anything. ये reels और shorts
दिमाग को मारता है आपके। और इसका एकदम जो कहते हैं ना हाहाकारी प्रॉब्लम, इसका जो क्या कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट जो देखने को मिलने वाला है, यू विल गेट टू सी इट इन 10-20 years टाइम। क्योंकि हम लोग तो फिर भी रील्स बड़े होने के बाद देखे, हम पे असर होता है दोस्तों। आई एम अ 45-year-old मैन एंड आई एम बीइंग अफेक्टेड बाय रील्स एंड शॉर्ट्स। मतलब उसको देखने से आपके दिमाग पे असर होता है। आजकल मैं ना यूट्यूब वीडियो 1x स्पीड पे नहीं देख पाता, आई फाइंड इट बोरिंग। मैं उसको कर देता हूँ 1.5x पे, 2x पे। आप में से कितने लोग ये करने की आदत बना चुके हैं कि आप एक नॉर्मल स्पीड पे कोई चीज नहीं देख पा रहे, बोर हो जा रहे हैं? आपको लग रहा है ये नॉर्मल बात है? नहीं, ये बीमारी आ चुकी है हमारे अंदर। कौन सी बीमारी? वी हैव लॉस्ट आवर पेशेंस। जल्दी देखना, हमको खत्म करना उसको। तो जो लोग ये कर रहे हैं, अक्सर कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हर चीज में लगा दे रहे 0.2 1.5 2x कर रहे हैं, मुश्किल में है। और ये एक बड़ा चेंज है आपके सोचने के तरीके में। और ये असर हुआ है आपके रील्स और शॉर्ट से। और शॉर्ट वीडियोस जो 7 मिनट 5 मिनट के वीडियोस आ रहे हैं ना, देखिए कौन से सक्सेसफुल वीडियोस है। क्यों सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं, राइट? क्यों देख रहे हैं? उनको आदत पड़ चुकी है। बना दो एक 25 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे, उसके व्यूज देखो कितने गिर जाते हैं। और एक वीडियो रखो 1 to 3 minutes का, देखो व्यूज कितने ज्यादा है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अस बिकॉज ऑफ दीज रील्स एंड शॉर्ट्स। आगे मर्जी आपकी है, डैमेज करो अपने आप को। 2-3 लोग बहुत अमीर अमीर बन रहे हैं, तुम लोग को लग रहा है रील्स क्रिएट करने वाले पैसा कमा रहे हैं, ये वो, राइट? हाँ, रियल बेनिफिशियरीज आर मार्क जकरबर्ग ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। चलो अब करेंगे एक्सरसाइजेस। वी हैव 8 minutes, लेट्स सी। चलिए 2-4 और एग्जांपल करवा देते हैं, होमवर्क दे देंगे आपको। देखते हैं बेटा, अगर मैं कहूं आई, ठीक है, सी वर्ब दे देता हूं, आप सोचना कौन सा टेंस सही होगा। सी वर्ब दे दिया, प्लीज लिसन। आई सी दैट बॉय 3 days ago। तो यहां सी का कौन सा फॉर्म यूज करना चाहेंगे आप? saw, Saw. Me too. ठीक है, कौन सा फॉर्म यूज करना चाहेंगे? V2। क्यों? मैंने क्या बोला था? 2 days ago। टाइम रेफर हो गया, टाइम रेफर हो गया, कौन सा टेंस हो गया? B2, Past पास्ट सिंपल। simple. कौन सा फॉर्म यूज होता है? एक एक कदम करके चलिए, बेबी स्टेप्स लेके, एक एक चीज एक बार में। पास्ट टेंस हो गया ना, बिकॉज ऑफ 2 days ago 3 days ago। ओके, आई सी वर्ब यूज करना है आपको। दैट गाय बिफोर। I have seen before. Imperfect. खाली V3 नहीं होगा, हैज एम प्लस V3 होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप ये नहीं बता रहे कब। आप कह रहे हैं हम देखे हैं इसको पहले। I have seen आप देखे हैं, बता रहे हैं him हम before. इसको पहले देखे हैं। आई हैव सीन हिम Before. बिफोर। आई हैव सीन दैट गाय Before. बिफोर। तो ऐसे करके आप डिसाइड करेंगे सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट। टाइम आ गया तो Past. पास्ट टेंस। अभी मैं एक लाइन बोलता हूँ, आई वोक अप, आई वेंट टू द टॉयलेट, क्या आई हैव गॉन टू द टॉयलेट। I went to the toilet. I went टाइम to तो हम I नहीं went to बताए, the toilet. हम तो टाइम नहीं बताया, तो क्यों आप बोल रहे हैं आई वेंट? When you woke up, no? हाँ, व्हेन आई वोक अप इम्प्लाइड था टाइम। भले ही हम नहीं लिखे उसमें, लेकिन इम्प्लाइड क्या था? आई वोक अप, आई वेंट टू द टॉयलेट। इसका मतलब क्यों आई वेंट टू द टॉयलेट? क्यों? बिकॉज व्हेन आई वोक अप आई वेंट टू द टॉयलेट। यही था ना इसका मतलब अगले लाइन में बोलने का। तो ये कॉन्टेक्स्ट हेल्प किया ना। आई वोक अप, नेक्स्ट लाइन आई वेंट टू द टॉयलेट, आई हैव गॉन टू द टॉयलेट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट, आई वोक अप एंड, हाँ, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? फिर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? जब भी कहानी में ऐसे चल रहा, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट कौन सा टेंस? Past. बताइए जल्दी। आप अभी देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके। हमको एक Past. क्वेश्चन पूछ चुके हैं, Past. भी Simple. तुरंत बोलना था ना फटाक से।
Past simple. समझदारी नहीं दिखाना है। ओके ओके सब लोग अरे नहीं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। कल भी मैंने कहा था तुरंत रिस्पॉन्ड करा करो, बोला था ना। सवाल मैंने पूछा और वो कह रही हाँ समझ तो रहे हैं, नहीं समझ नहीं रहे, फटाक से जवाब दो। I woke up, I went to the toilet. What happened next? I came out. What happened next? I had a shower. What happened next? I got dressed. तो what happened next का आंसर कौन सा टेंस में होएगा? Past What simple. happened? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? What happened next? ठीक है, इसका जवाब कौन सा टेंस में देते हैं? Past simple. अरे आपका रोड पे कल जो पढ़ाए थे उसको जल्दी से क्विक रिवीजन। एक्चुअली एक सेंटेंस अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट भी है, पास्ट सिंपल भी है, दोनों अपने आप में सही है सेंटेंस है। उसको कौन से कॉन्टेक्स्ट में रखना है ये डिसाइड हमें करना है। हम अभी की बात कर रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट की बात कर रहे तो पास्ट सिंपल। ये टेक्स्ट है 6 टेक्स्ट यू कैन सी हियर। 3 टेक्स्ट अबाउट स्टीव अर्विन, प्रिंसेस डायना एंड जॉन लेनन, and 3 texts about Bindi, Prince Harry, and Julian Lennon. You have to read all the 6 texts and you have to complete them. This is your homework for tomorrow. You have to complete all the 6 texts. Okay? And exercise 4 as well. You have to do exercise 4 as well. This is your homework, guys. मैंने जितनी पढ़ाई कराई है 2-3 दिनों में, इसका एप्लीकेशन है वहां पे। ठीक है? देखो बच्चों, फिर से बताता हूँ, आपके अंदर जो पढ़ाई करने का तरीका होता है ना, उसमें कुछ चेंजेस लाने से आप बेहतर स्टूडेंट बन सकते हैं। कुछ चेंजेस लाने से, जैसे आप अगर थोड़ा स्लो हो जाएं और आप थोड़ा फास्ट हो जाएं, कैसे फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। उनको थोड़ा स्लो होने की जरूरत है, वो जल्दी हड़बड़ा के बोल जाते हैं और इनको पता भी रहता है तो चुप बैठी रहती है। जबकि चाहिए फटाक से बताना जब पता चल गया है कि मुझे ये जवाब देना है तो। राइट? तो हर एक कोई अपने अपने चीजों को देखिए, अपने तरीके कैसे बेहतर कर सकते हैं क्लास में। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। शुरू करने से पहले 3 दिन मैंने पढ़ाई कराई है। राइट? प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच का डिफरेंस बताना है एक लाइन में। प्रेजेंट परफेक्ट नेवर टॉक्स अबाउट द, अब टाइम बोल रहे तो वो 15 साल 20 साल, वो टाइम नहीं, टाइम ऑफ द एक्शन। Time of एक्शन हुआ, टाइम ऑफ द action. एक्शन, व्हेन द एक्शन टुक प्लेस, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बता। खाली टाइम बोलोगे तो कंफ्यूज हो गए थर्ड यूज से कि सर बोल रहे टाइम नहीं बताता है प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ 12 साल 2 महीना 2 दिन बोल रहा है, वो टाइम नहीं, टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे, टाइम ऑफ द एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट नेवर मेंशंस द टाइम ऑफ द एक्शन, सो टेक केयर ऑफ दिस। और पास्ट सिंपल बता सकता है टाइम ऑफ द एक्शन। ठीक है? तो इनडेफिनिट टाइम मतलब कब हुआ नहीं पता, इनडेफिनिट टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट टॉक्स अबाउट इनडेफिनिट टाइम एंड पास्ट सिंपल टॉक्स अबाउट डेफिनिट टाइम। तो जब मैंने कहा आई वोक अप, आई वेंट टू द टॉयलेट, कब? व्हेन आई वोक अप, अंडरस्टूड, राइट? डेफिनिट टाइम। सो गाइस, I'll see you tomorrow. You have some homework, very important homework. सब लोग करके प्राइवेटली मुझे भेज देना। ठीक है? I am looking forward to this. Are you guys feeling excited कि कर लेते हैं अगर ये सही सारा, तो हम लोग अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि 3 दिन मैंने बर्बाद नहीं किए, कुछ सीखा हम लोगों ने। सो अगेन, इफ यू मेक मिस्टेक्स डोंट फील एम्बैरेस्ड प्लीज। मुझे पता है गलतियां होती हैं लड़कों से लड़कियों से, गलती जब सीख रहे हैं तो गलतियां करेंगे वो, तो डोंट फील एम्बैरेस्ड अबाउट देम। आई विल टॉक अबाउट देम अगेन। मुझे बुरा कब लगता है? जब आप ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा थोड़ी गलतियां आप नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स यू विल मेक मिस्टेक्स। So go ahead. If you get it all right, no problem. That will be amazing. But if you make mistakes, no worries. We will still talk about these things tomorrow. So all the 6 texts you have to complete, and then you have to do exercise 4. You have to make questions. Let's meet tomorrow. Bye-bye, everyone. Take care. Bye, sir. Good night. Bye. Bye-bye. Bye, sir. Bye-bye. Bye. Bye-bye.